Dedication is more important than designation. Sincerity is more important than seniority. Values are more important than valuables. Mindset is more important than the marks. Efforts are more important than the results. Loyalty is more important than royalty. And finally, proper work is more important than the paperwork. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Dear listeners, look at the screen. What is this? Common technical document. Why I see this? What is the importance of this document? Do you know it is a full job skill? Do you know a person spent 5 to 6 years while learning this document? Do you know the environment of pharmaceutical industry? It is very slow paced learning environment. Do you know you will be a competitor of 5 to 6 year experienced personnel inside the regulatory affair? So this is the course for those professionals which are working inside the pharmaceutical industry. So stay connected. We are giving the technical expertise of common technical document. We are giving the expertise of those points of drug laws which are required for common technical document. We will know what type of documents are required for common technical document. We will know the inner content of each document required for common technical document. We will know all types of flows inside pharmaceutical industry. We will know different computer skills required for browsing and running different softwares. In a net, me, after completion of this course, will be able to set in comparison and competition of person who has 5 to 6 year experience in pharmaceutical industry. So before starting this course, before kicking this course, let me show you and let me explain who are the beneficiaries of this course and this training. All those personnel planning their future in pharmaceutical industry, it is a course for these peoples. So Bismillahirrahmanirrahim, common technical document. What is common technical document? A common technical document is basically an application which we proceed for the registration of drug product from the ministry. We in Pakistan proceed these documents and prepare this document inside our pharmaceutical industry and then submit that document, common technical document, to the ministry, and then they made some questions regarding the safety, efficacy, and quality of drug product. And at the last, they gave us registration approval or market approval. Then we can sell our product inside Pakistan. Common technical document is also called market authorization. Initiation of this document by DRAPE has begun in 2018. It is an internationally recognized pattern for submission of drug registration application. It is an internationally accepted pattern of document. So if we know this document, preparation and compilation of this document, and we will be able to grow the business of pharmaceuticals throughout the world, and we will be able to grow our economy. Let me start the course. The course common technical document or the training of common technical document, it is basically a very huge document. It is composed of a lot of pages and a lot of areas. So this broad area can be categorized into different phases. So we have categorized this broad area into 7 phases, which are phase number 1, understanding laws implemented by ministry. Phase number 2, understanding guidelines. Phase number 3, understanding insight of documents. Phase number 4, understanding technicalities. Phase number 5, computer skills. Phase number 6, compilation. And phase number 7, submission. Let me talk about the phase number 1, that is understanding laws implemented by ministry. It is the far most important point while preparing the common technical document. A person who has a better knowledge of laws, those laws which are implemented by ministry, he is an expert of law. He can save time, business, resources, professional career, and economy. A good law expert saves wastage of time. How he saves it? For example, if a person does not know the import rules, he cannot import, he cannot grow his pharmaceutical industry. For example, a person who does not know laws, he is just wasting resources. For example, a person who does not know law, he may commit an error which is punishable. A person who does not know the laws which are implemented by DRAPE, he is just wasting the business. What are the laws which are required for a common technical document? The laws, the most important laws which are required are the Drug Act 1976, the Drug Licensing Registration and Advertisement Rules 1976, guidance document are also guidelines of WHO, that is Annex 6, technical report series of WHO, ICH M4Q guidelines, WHO QSPD. We will have a separate session of this in detail. So the net point is that an expert of law do not just understand best practice, they understand how to shape and how to trigger the business of pharmaceutical internationally. Let's move to the second point, understanding guidelines. There is a document
mentioned, that is guidance document for submission of application on Form 5 CTD for registration of pharmaceutical drug product for human use. We will have a separate detailed discussion in understanding these guidelines because these are the track footprint for preparation of pharmaceutical dossiers. A person with an understanding and expertise of these guidelines assures regulatory compliance. He assures the drug registration dossier meet the legal and scientific standards. He can assure the international acceptability of the application prepared by him. He can enhance the navigation of the system. He can make his system more valuable and he can show to the whole world the level of technology he can proceed and the safe, effective, and quality medicine he can provide. He can align with international recognition and international harmonization because these guidelines are recognized internationally. He can reduces the cost, he can reduces the risk, he can grow the whole business because when a product is prepared in the format or in the proceedings of common technical document, he can use the same data internationally for all ministries in the submission process. It was all about understanding guidelines. We will be having a detailed session while understanding these guidelines. Let's move to the next slide. The third phase is that we must know and we must understand insights of document. It means that what is lying inside the document. We must know what are the documents which are of common technical document, and we must know that which information is lying in which document and which document must contains information which is necessary for my requirement. As a regulator, a person must know that which document is okay and accurate and which document needs accuracy and needs adaptation according to the common technical document, and which documents needs more inclusion of data for meeting our requirement. A regulator must know the QC, that is quality control or analytical services data for raw materials and product. What are the documents and what are the requirements for the raw materials and products in reference to common technical document. He must know that what type of document and what type of data is required from the formulation department. He must know that what type of data is required from the validation department. And he must know what is the legal status of administrative document. There will be a detailed discussion and detailed session of this segment in reference to CTD. If our documents are okay and good and according to the pattern required by the ministry, we will proceed our document in less time and good response will be given to us without queries from the ministry. If we proceed our documents according to the ministry guidelines, then we will achieve the expectation of quality, safety, and efficacy of the ministry. Also, lastly, it makes a person more professional and more capable for handling and applying for different registrations of pharmaceutical product. Let's move to the next slide. Understanding technicalities. Understanding technicalities is very important point for CTD. All type of documents proceeded by different departments like quality control and formulation department and validation department are just provided in the form of document. The documents provided to the regulatory affair department is just the references which is proceeded in different departments. The document provided by different department is just what is happening inside the different departments. All type of practical work is just handed over to the regulatory affair department in the form of document. So if technicalities are good, if we are more technical, our data will be good, our document will be good and okay, and will enhance our chance for approval. We will be having a complete detailed session around a person who is more practical expert has more efficiency in submission of document. He can know whether the document is okay or not. Different type of documents reflects the technicalities. For example, batch manufacturing order reflects the complete process. Method analysis reflects the complete working upon the testing of some chemical or product. So if a person knows technicalities, he can know whether the document is okay or not. Let's move to the next slide. While dealing with common technical document, a person must have a computer skills. Why? It is because throughout the world, only computerized data is handed over to the ministry. If a person want to know about the common technical document and submission, he must have good skill of computer, like he must handle keyboard, he must run the softwares like MS Word, MS Excel, he must know scanning, he must know printing, he must know different page sizes and page setups. A person with good computer knowledge can efficiently prepare the document and in good formatting with good skills like he can place header, footer, tables, different styles, different bookmarking, replacing of different words. He can set the data with good accuracy. He can analyze the data and he can review the data by using splitting of page and finding option.
A person with good computer skills consumes less time as compared to that who does not know computer skill. He can trace the data, he can handle site browsing, he can handle emailing, he can handle communication. If we conclude the importance of computer skills in reference to CTD, Common Technical Document, we come to conclusion that all submission throughout the world is only possible if person knows about the computer. Let's move to the phase 6. When all the documents are handed over to the regulatory affairs department from other departments like quality control, formulation department, validation department, all this data must be compiled in a fixed format before submission to the ministry. There are some points which are not accessible or which cannot be provided in the document. So there are two options which are given in the guidelines. If the required document is optional, then we will put the statement as submission is optional. If there is a point which cannot be accessible or which cannot be provided, like there is no facility for testing or there is no reachable point, so we write there as NA or not applicable. Not applicable or NA can be written also in those points which are optional. A person with good compilation expertise can improve reviews, which is either inside the pharmaceutical industry or in the view of evaluator. A good compilating expertise can integrate data from various departments very effectively. A person with good compilation expertise can minimize the risk of rejection of our application. He can make the credibility of the document and he can reduce the timeline for registration of pharmaceutical product. Let's move to the last slide of today's session. Submission is the last step of applying for pharmaceutical product. Submission is the last step of knocking the ministry for registration of pharmaceutical product. For submission of pharmaceutical registration application, we submit the application in our e-services portal. In our portal, we put ID and password. There is a tab for registration. Inside it, there is a tab for new registration. Inside this, we fill different points. We attach all the modules. At the last, we type the covering letter. In regard to submission of our pharmaceutical registration application, we will be having a complete session. Thanks for watching today's session. This was all about today's session. Hello dears, today we will be exploring the topic that how the drug product that is ciprofloxacin 250 milligram tablet reaches from the synthesis inside the chemical laboratory to the patient in the medical store. What is the flow behind this whole journey and how it reaches to the product manufacturer and then how it reaches to the medical store and at the end how it reaches to the patient. We will be exploring today inshallah the whole story. So while starting the flow of pharmaceutical product, first of all, the marketing department or the business development department inside the pharmaceutical industry, they made a survey and they come to the conclusion that in the market there is demand of this product. They mention these products they see for the need of the customer and the demand of the market, which is still deficient in the market. As we know that inside a pharmaceutical industry, there are two types of thinking. One angle of thinking is about the business and another angle of thinking is about the technicalities. Those who are business personnels think of that the pharmaceutical industry is a very best source of income in the recent era. And for the technicals, this pharmaceutical field is regarded with the patient safety, efficacy of the product, and ensuring the product quality so that when a patient receives that medicine, he should find the purpose of that medicine. He should find the efficacy, he should find the safety, and he should find the quality from that drug. So taking into account the business goals, the owner instruct the business development department to explore opportunities for expansion. At this point, a market survey is initiated and the department begins identifying areas where the business can be developed. So let's take an overview about why the market survey is conducted inside the pharmaceutical industry.
The business development department conduct the survey because of the mentioned reasons. First of all, they, when develop the business, they search for the point and areas which can satisfy the customer need. So from this point, it is understood that the customer of pharmaceutical industry is the patients which are in abnormal condition and they search for the better health. The second point is that the marketing department assess the competitors in the market and they search for the competitor product and they search for the graph of the use of the specified product, so they conclude from this point the net income which can be expected from this product. Business development department also supports the product development section. The product development section can be run inside the pharmaceutical industry if there is a plan for the new products which is to be manufactured by the pharmaceutical industry. Also, the main reason behind the market survey is that the evaluation and branding in the market of pharmaceutical product and pharmaceutical manufacturer. If the pharmaceutical industry meet the needs of the patient and meet the needs of the authority, they can go from the very low steps to the very high steps. Before finalizing about the costing analysis, a literature survey is conducted by the formulation department and the analytical services department. In the literature survey, the formulation department look for the API and the excipients which are to be used in the formulation of the specified pharmaceutical dosage form which is in future plan. And the analytical services department do research on the chemicals which are to be used and the method which is to be used for the testing of pharmaceutical product and method is to be used for the testing of pharmaceutical product and for the manufacturing of pharmaceutical product. For example, in ciprofloxacin 250 milligram tablet, there are 3 to 4 different type of tablet manufacturing procedures. For example, whether ciprofloxacin 250 milligram can be manufactured by compacting process or it can be manufactured by the compression process or it can be manufactured by slugging process or it can be manufactured by wet process or it can be manufactured by the dry process. So literature survey gives us a theoretical idea about the future practicality which we will perform on the manufacturing and testing of the specified pharmaceutical product which is in future plan. It also shows a very important parameter for the raw material storage and for the product storage. For example, there are some chemicals which are to be stored in the cool zone and there are also some chemicals which are stable in the refrigerator. So we knows about the nature of that raw material and product and we knows that where we should place that pharmaceutical raw material or drug product for better efficacy and good stability. After the market survey and the literature survey, the forms are generated from the formulation department and the analytical services department and shared with the business development department for costing and analysis. When the costing analysis is discussed with the owner of the pharmaceutical company, then he allows to plan for the manufacturing of that pharmaceutical product. So after that, the story of purchasing of raw material is started. For the purchasing of different pharmaceutical chemicals, there is a department called procurement department who searches for the vendors and the companies providing the specific chemicals of our interest. They go in contact with the pharmaceutical suppliers and ensure about the future plan. The purchase department is provided the calculation sheet from the analytical services department and formulation department about the future plan of the product. The purchase department, before the purchasing of the chemical, keep in view some of the most important point. They take into account the big history of the quality of that supplier. The second point
which is important for the purchase department, is cost analysis. The purchase department will prefer the low cost of the same quality of the chemical. The third point, which is most important, is time management history. There are some suppliers which manages the chemical very urgently and very quickly. So these suppliers are preferred. Also, the purchase department take into account the point of providing the documents. Those suppliers which provide the complete document for the registration of pharmaceutical product, for the development of pharmaceutical product, are preferred. So if these points are ensured by supplier lying inside the country, we prefer for those suppliers. And if these points are not ensured by the supplier inside the country, we prefer to manage the chemical from the external sources. The main sources which are providing the pharmaceutical chemicals into the country are from India and from China. These are the two main countries which provide the API, or the active pharmaceutical ingredient, or it is also called drug substance. The documents which are required to the product manufacturer about the chemical is certificate of analysis, method of analysis, stability data, drug master file, and TCBC certificate, DML of the supplier, GMP of the supplier, working standard used by the supplier, and in need of requirement, any other document. When the chemical is shifted from the receiving and issuance department, it is carried to the PD quarantine area. When it reaches to the PD quarantine area, first of all, the storage condition labeled over that chemical is studied and dealt accordingly. The record is maintained with respect to its name, its quantity received, its batch number, its manufacturer, and its expiry date. The sample is taken to the analytical services department. When the chemical is in stage of testing, a yellow color tag is marked over that chemical. When the chemical is shifted to the analytical services department, there we take receiving from the analytical services department personnel about the quantity of sample they receive. After maintenance of the PD quarantine area record and the material reaches the analytical services department, there the analytical services department flow process begins. Inside the analytical services department, first of all, they look for the storage condition of the chemical they receive, and they deal that chemical accordingly. The sampling record system for the raw material is maintained also inside the analytical services department. They register some parameter of the sample, which are name of the chemical, batch number of the chemical, manufacturer, expiry, and its receiving date. Also, a separate file of that chemical is stored, whether it is in soft form or in hard form. In that file, all the data in attachment with the specified chemical is placed. That is, the testing procedure, the specification given by the supplier, the stability data given by the supplier, and the necessary other requirement. The analytical services department first of all find the method of analysis for testing of the raw materials. And if the method is not covered in the pharmacopoeia, then they develop their own method of testing of that raw material. The result of that raw material is maintained and is handed over in the form of CUA. After testing and OK status from the analytical services department, they give the result of that raw material to the quality assurance department. In most of the pharma, during the product development, the quality assurance department is not involved, but the quality assurance department involvement is clearly stated in 1.3.7 of the CTD guidelines. When the material is passed from the analytical services department, they give the results in the form of CUA to the QA department. QA department check for the CUA and the whole back history of their raw material. After satisfaction, the QA department generate the green tag and give it to the formulation department. R&D
material. If the green label is not placed over the raw material, the formulation department cannot use that raw material in the process of formulation. When the raw material are okay, the formulation department develop formula containing the active quantity and the excipient quantity, and also they made a suggestive process for the manufacturing of the dosage form in the form of trial. After completion of the trial, they gave the sample back to the analytical services department for the testing of the trial product. The record of the sampling is maintained by the formulation department. So they receive a sample of trial product from the formulation department and the sampling record is maintained. The analytical services department then develop the method of analysis for that pharmaceutical product if it is not pharmacopoeial covered. Testing record is maintained in the form of CUA and is given to the formulation department. The formulation department, after knowing that the product is okay by the analytical services department, do not take more trials. They directly take the stability batch. The stability batch is manufactured and is given to the analytical services department. They carry that batch to the stability chamber and check and test that batch in regular frequency from time to time. That is, the product should be tested after each 3 months during the first year, and after each 6 months during the second year, and after each year during the third year. This frequency is maintained by the ICH. Also, it is ensured that the stability chamber is attached to a data logger which records the temperature and humidity. There is specified temperature for each zone worldwide. There are 4 zones throughout the world and Pakistan is located in the zone 4. Our stability chamber condition for long term is 30 degrees centigrade and 65 degree humidity, and our condition for accelerated stability chamber is 40 degrees centigrade and 75% humidity. As per CTD guidelines, we can submit our application if we cover 6 months stability. So, say after successful stability of 6 months, each department proceed his own data to the regulatory affairs department. The product development department share protocols, reports, batch manufacturing procedure, batch packaging procedure to the regulatory affairs department, both in soft form and in hard form. Also, the analytical services department share the whole documents to the regulatory affairs department. They share the whole document which are involved in the testing of the drug substance, and they also share the whole document which are involved in the testing of the drug product to the regulatory affairs department. The validation department also share its own document to the regulatory affairs department. The main documents which are shared by the analytical services department are the API CUA, the excipient CUAs, the packaging CUAs, the method of analysis for the API, method of analysis for the excipients, the system suitability standard, the certificate of analysis, the stability data, post-approval protocols, and all other data which are involved in the testing of the API and the excipient. So, after the successful compilation of data from the whole departments, the regulatory affairs department evaluate the whole data, and also they dig out the points which are queryable. They communicate to the respective department about the respective query. When the queries are internally defended, then the regulatory affairs department proceed the documents for the compilation and preparation of common technical document. The common technical document is prepared just in the same format and same guidelines as given in the common technical document. We will have a complete session of the common technical document preparation. When the common technical document is prepared, it is uploaded to the site of the authority. The authority, after receiving that dossier, they share the dossier to the evaluation cell. The evaluation cell then evaluate the whole document, common technical document, and they made a query if they find. They consult with the manufacturer as contact number is given in the common technical document, and also they notify the query. The query is submitted by the manufacturer.
After successful query session, the common technical document is proceeded to the minutes of meeting. In the meeting, the application for registration of pharmaceutical dossier, that is common technical document, is either rejected or approved. After approval of dossier in the meeting, the registration letter is awarded to the company or the manufacturer. In the production department, the same technology shall be used which was used in the formulation department to develop the formulation. So dispensing process gets started for the first batch. The first 3 batches shall be considered for the validation. The validation department carry out the process from the first up to last and note all the changes and all the deviations to set out the process for future plan. During the manufacturing, the in-process checks are ensured. The sample is given from the production department to the QC department. Also, the technology of testing is transferred from the analytical services department to the QC department. And after packing and packaging, the product is shifted to the FGS store. There, the storage condition is maintained and also a message is handed over to the marketing department. The marketing department sells the product. Also, sometimes the quality of the product is not okay and it is found out in the market. The market surveillance is maintained by the regulatory authority. After testing of the product and fail result, they communicate with the manufacturer to recall the whole batch. The whole batch is recalled and is rectified if possible. And if the issue cannot be rectified, then the batch is destroyed. So this was all about today's session. Inshallah, next we will explain one by one in detail. वो है ड्रेप एक्ट 2012 में सेक्शन नंबर 7 ड्रेप Bismillahirrahmanirrahim. Dear technicals, today we will be properly starting our course for the common technical document. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ड्रग लॉ में इसकी रेफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं. ये कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं ड्रेप को तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ड्रग लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन एंड एडवर्टाइजमेंट रूल्स का रूल नंबर 26(1) ये हमें बताता है कि जब हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल करनी होती है तो हम एक एप्लीकेशन जो है ना वो सॉफ्ट फॉर्म में, पहले ये हार्ड फॉर्म में जाता था, आजकल ये सॉफ्ट फॉर्म में है, तो सॉफ्ट फॉर्म में वो हम सबमिट करते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को. तो उधर लिखा है कि फॉर्म 5 या फॉर्म 5F पे हम सबमिट करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. फिर वो उधर जो है इवोल्यूएट होती है, इवोल्यूएशन के बाद क्वेरी आती है, क्वेरीज़ के बाद हम उनको दोबारा डिफेंड करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, एट द एंड फिर वो हमें रजिस्ट्रेशन लेटर दे देते हैं. ठीक है, तो ये इसका सबसे पहला रेफरेंस हुआ. तो रूल नंबर 26(1) में शेड्यूल ई का जिक्र हुआ है एक जगह. तो शेड्यूल ई जो है ना ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम एनक्लोज करते हैं अपने एप्लीकेशन में. हम एक कवरिंग लेटर बनाते हैं, कवरिंग लेटर में हम एनक्लोजर में जो है ना वो एक पूरा एक लिस्ट डालते हैं जिसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट. आगे जाकर हम उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. तो वो उसके साथ लगा के हम शेयर करते हैं सॉफ्ट में टू द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान. ओके, ये इसका सबसे पहला रेफरेंस हुआ. दूसरा रेफरेंस जो है अवेलेबल गाइडलाइंस. हमारे पास गाइडलाइंस, पब्लिश्ड गाइडलाइंस अवेलेबल हैं जो कि ड्रेप की वेबसाइट में हैं और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैंने शेयर किए हैं. उधर गाइडलाइंस जो है ना ड्रेप की तरफ से जो पब्लिश हुई हैं, फर्स्ट एडिशन अभी तक अवेलेबल है. जो एडिशन 1 है अक्टूबर 2020 में फर्स्ट एडिशन आया हुआ है और वो अवेलेबल है, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने शेयर किया हुआ है. तीसरा जो हमारे पास रेफरेंस है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के लिए वो है ड्रेप एक्ट 2012 में सेक्शन नंबर 7 ड्रेप एक्ट 2012 ये बताता है पावर एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी. अच्छा, पावर एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी में C9 नंबर जो है वो हमें कहता है कि ड्रेप इम्प्लीमेंट करेगी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स को. अब अगर हम कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट की बात करें तो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में ICH गाइडलाइंस जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स हैं. FDA के जो गाइडलाइंस है, FDA का जो पैटर्न है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड है. और WHO का जो स्टैंडर्ड है, WHO के जो गाइडलाइंस हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं.
तो ड्रेप ने कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन पब्लिक की है 2020 में, और टाइम टू टाइम वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। और इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो WHO है, जो ICH है, जो FDA है, उनके जो स्टैंडर्ड्स है, उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम अपनी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन अभी प्रोसीड करेंगे। 4th नंबर पर जो हम रेफरेंस यूज़ करेंगे वो है स्टेप 4 प्रोसेस ICH के गाइडलाइंस। ICH के गाइडलाइंस जो है वो स्टेप 4 तक पहुंच गए हैं 2000 में। ICH जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, इसमें जो है 3 मेन पार्टीज़ है, यूरोपीय यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान। उन्होंने इकट्ठे 3 रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो कंबाइंड रेगुलेटरी बॉडी है, और वो जो है इंटरनेशनली गाइडलाइंस, इंटरनेशनली जो है फार्मास्यूटिकल्स या थेरेप्यूटिक पर्पस केमिकल्स जो हैं उनके लिए जो है ना गाइडलाइंस पब्लिश करती हैं, और उनके लिए मुख्तलिफ प्रोसेसेस टू मेक इट मोर क्वालिटी, टू मेक इट मोर इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ पर्पसेस। तो ये हमारे पास ला रेफरेंसेस हैं, और इन्हीं ला रेफरेंसेस को हम यूज़ करके अपने कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट को बनाएंगे, और फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को हम शेयर करेंगे, हम सबमिट करेंगे। हम इंडिविजुअली 1 बाय 1 जो है ना इंडिविजुअल स्टेप को जो है कवर करेंगे, ताकि हम इस एबल हो जाएं कि हम पूरे प्रोसेस को इजीली टैकल कर सकें, और इजीली हम अपना एप्लीकेशन रजिस्टर करा सकें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से। जी, तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। वैसे तो कोई ऐसी स्ट्रेट जनरल प्रिंसिपल्स कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन EMA की वेबसाइट में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट, तो वो हम अगर रेफरेंस के तौर पर यूज़ करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि इंटरनेशनली किस तरीक़ाकार के मुताबिक कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ हो सकते हैं कि हम एक थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए केमिकल अप्लाई करें, एप्लीकेशन सबमिट करें रेगुलेटरी अथॉरिटी में, और उधर से हमारा इजीली अप्रूव हो जाए। तो हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को एज अ रेफरेंस लेते हैं अपने कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग के लिए। तो उधर जो है ना मेनली जो थिंग्स मेंशन है पेपर साइज़। पेपर साइज़ जो है ना वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए जो हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसमें हम A4 साइज़ पेपर रखते हैं। और लिफ्ट मार्जिन, ये जो पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं ये बेसिकली हर्बल प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन EMA उधर से मैंने पिक की हैं, और उन्होंने जो प्रिंसिपल मेन फोकस की हैं और जो पैरामीटर्स फोकस की हैं, तो उन पैरामीटर्स के तहत हम अपने रेगुलेटरी अथॉरिटी को, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो पेपर साइज़ जो है ना वो A4 हम यूज़ करेंगे कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट के लिए। लिफ्ट मार्जिन, ये भी एक पैरामीटर है। लिफ्ट मार्जिन हमने इतना रखना होता है चूँकि प्रीवियसली हम जब एप्लीकेशन सबमिट करते थे तो वो हार्ड फॉर्म में सबमिट करते थे, और आजकल तो हम सॉफ्ट फॉर्म में ड्रेप ने आसानी बनाई है। अपनी ही कंपनी में बैठ के बंदा जो है ना इधर से डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। तो अगर फिर भी हम कोई डॉक्यूमेंट ड्रेप को भेजेंगे तो वो हम लेफ़्ट मार्जिन इतना रखेंगे कि जब हम बाइंडिंग करें तो उसमें कोई लफ्ज़ या कोई लेटर जो है ना वो छुपा ना हो। वो बाइंडिंग के दौरान जब हम उसमें स्टेपल करते हैं या कोई बाइंडिंग करते हैं तो उस दौरान कोई बाइंडिंग में कोई हुरूफ जो है ना वो छुपे ना। और फ़ॉन्ट साइज़ हम इतना रखेंगे कम से कम कि जो विज़िबल हो, जो कि इजीली रीडेबल हो। और मेनली ये एक स्टेटमेंट उधर भी लिखी है कि एक ऐसा फ़ॉन्ट साइज़ हम रखेंगे कि जब हम उसको फ़ोटोकॉपी भी करें तो उसके बाद भी एक लेटर या सेंटेंस जो है वो क्लियरली विज़िबल हो। नैरेटिव टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल, नैरेटिव टेक्स्ट जो है ना वो हम लिखेंगे टाइम न्यू रोमन में, उधर भी ये स्टेटमेंट लिखी है कि टाइम न्यू रोमन में लिखना है। और एंड स्टाइल टाइम न्यू रोमन में लिखना है, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो हमने 12 रखना होता है। पेज नंबरिंग जो है ना वो बहुत मस्ट एक ऑप्शन है। पेज नंबरिंग से हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। बेसिकली आगे जब हम जाएंगे तो हम जब टेबल ऑफ कंटेंट लिखेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम आगे पेज नंबर लिखेंगे, और वो पेज नंबर पर हमें ट्रेस करेगा अपनी टारगेट डेटा पर।
तो पेज नंबरिंग, हर पेज के ऊपर अपना नंबर ज़रूरी है ताकि हम टेबल ऑफ कंटेंट से एक नंबर देखें और वही नंबर जो है, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 22 मैंने लिखा है कि पेज नंबर 22 पे DML मेंशन है, तो इधर अगर टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबर 22 है तो मैं पेज नंबर 22 उस कंप्लीट एप्लीकेशन में पेज नंबर 22 को जो है ना वो पिक करूँ तो वो उधर भी वही होना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस पेज नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिक 5 मॉड्यूल्स, 5 बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं और स्टिल नाउ जो इम्प्लीमेंटेड हैं वो हैं 3 गायो एनसीटीटी एप्लीकेशन। गायो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो कि जापान रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना वो उसकी एप्लीकेशन है। वो गायो सब एप्लीकेंट जो है ना वो गायो एप्लीकेशन फॉर्मेट तैयार करता है, फिर वो अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी को देता है अपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ थेरेप्यूटिक पर्पस केमिकल। और हम जो है ना डायरेक्ट CTD एप्लीकेशन जो है ना वो फॉर्मेट उन्होंने ड्राइव की तरफ से हमें एक फॉर्मेट मिला है, हम उस फॉर्मेट में अपनी कंप्लीट डेटा जो है ना वो पुट करते हैं, उस एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना लेते हैं और फिर सब हम सबमिट करते हैं ड्राइव को। फिर उधर से हमें रजिस्ट्रेशन मिलती है और हमें मार्केट अथराइजेशन मिलती है, फिर हम ड्रग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फिर हम ड्रग जो है ना वो मार्केट में बेच सकते हैं। अपनी हार जीत अपने मुंह पे कभी ना लाएं पुत्र, वरना लोग जान जाएंगे कि ये मरता कहां से। अपनी हार भी अपने अंदर रख, अपनी जीत भी अपने कलेजे के अंदर रख, एंड नेवर लेट योर एनिमीज हैव दैट ब्यूटीफुल स्लीप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो उसमें अगर हम समराइज़ करें तो उसमें हमारे पास जो मेनली थे वो थे कि किस स्टाइल में हमने राइटिंग लिखनी है, जो कि टाइम न्यू रोमन थी, और पेज साइज़ हमने कौन सा रखना होता है वो है A4 साइज़, और इसी तरह 12 साइज़ में हमने राइटिंग लिखनी होती है। और इसी के अलावा जो गाइडलाइंस हैं वो उधर मेंशन है, फिर वो उसको देखिएगा। अब इस टॉपिक में, इस लेक्चर में मेनली हम फोकस करेंगे कि व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो ड्रेप से अगर हम एक प्रोडक्ट को रजिस्टर कराना चाहें इन द CTD पैटर्न, तो उसके लिए एक फॉर्म है, फॉर्म 5F। ये हमें कहाँ से मिलेगा? अब हम गूगल में एंटर करें और गूगल में जाएं और उधर टाइप करें फॉर्म 5F CTD ड्रेप, या सिंपली ये लिखें फॉर्म 5F ड्रेप, तो वो आपको डायरेक्ट उधर ले जाएगा। उधर से आप उसको खोल के डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करें तो यही जो फेस है ये सामने आपके आएगी। ठीक है जी। अब कंटेंट ऑफ मॉड्यूल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, इसको हम कंटेंट या टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं, और ये मॉड्यूल 1 का ही पार्ट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास जो मेन हेडिंग होते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन एंड हेडिंग होते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो कैटेगराइजेशन हुई है ये इस पर्पस के लिए हुई है कि हम जो हेडिंग में लिखे हुए जो टाइटल हैं, फॉर एग्जांपल कवरिंग लेटर या फीचर ऑन, इसको हम इजीली ट्रेस कर सकें। एप्लीकेशन जो होता है वो एक बहुत बड़ी एक फॉर्मेट होती है, बुक टाइप होती है, तो उसमें से डेटा का ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो उस ट्रेसिंग को आसानी के लिए हम ये सेक्शन, सब सेक्शन और हेडिंग बनाते हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन में सेक्शन नंबर 1 है और उसमें सब सेक्शन भी एक ही है, और वो हेडिंग जो है ना उसमें 2 हेडिंग है, कवरिंग लेटर होता है और एक होता है फी डिपॉजिट स्लिप। कवरिंग लेटर और फी डिपॉजिट स्लिप प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि ये कब बनते हैं, जब हम एक एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं तो हम टेबल ऑफ कंटेंट से लेकर एंड तक हम सारा का सारा एप्लीकेशन पहले बना लेते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से अपना डाटा ले लेते हैं और फिर उसको कंपाइल करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, क्वेरी जो होती है इंटरनल क्वेरीज उसको रिजॉल्व करते हैं। एट द एंड हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम इसको आगे प्रोसीड करें। इस टाइम पर हम एट द एंड जो है ना फ़ी डिपॉजिट करते हैं। फ़ी जब हम डिपॉजिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जनरेटेड चालान होता है, उसको हम प्रिंट करते हैं और बैंक में हम सबमिट करके
उधर स्कैन करके इधर लगा देते हैं। और जो डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसमें हम यही फ़ीस जमा करते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा रही कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर जो होता है वो बेसिकली एक लेटर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट फॉर्म 5F या कंप्लीट एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा फाइल होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, समराइज़ करके हम एक कवरिंग लेटर बनाते हैं। कवरिंग लेटर में हम क्या लिखते हैं? कवरिंग लेटर में हम बेसिकली इस तरह लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि IV नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं, फिर आगे लिखते हैं कि एम अप्लाई इज अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नेमली फिर उस प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और समेत स्ट्रेंथ के और डोजेज फॉर्म के, फॉर एग्जांपल सिप्रोफिलैक्सिस इन 250 मिलीग्राम टेबलेट। अच्छा, फिर उसके बाद हम नीचे लिखते हैं कि हमने फ़ीस सबमिट किया है और चालान जो ट्रेसिंग होती है, चालान नंबर हम उसमें वो पुट करते हैं। और नीचे हम प्लांट मैनेजर या प्लांट डायरेक्टर या प्रोडक्शन मैनेजर या जो भी ऑथराइज पर्सन होता है जिसको ऑथराइज किया होता है एज एन एप्लीकेंट, वो नीचे साइन करता है। ठीक है जी। तो ये हो गया कवरिंग लेटर एंड फी डिपॉजिट स्लिप। ये सेक्शन, इस सेक्शन में सिर्फ एक सब सेक्शन होता है और एक हेडिंग होता है, टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 5। ये नीचे जो भी है, इसके नीचे जो भी आता है ये टेबल ऑफ कंटेंट ही है। तो आगे हम जाते हैं 1.3 सेक्शन। ये जो सेक्शन, सब सेक्शन और हेडिंग है, ये बेसिकली है इजी ट्रेसिंग के लिए, कि हम एक डॉक्यूमेंट को ट्रेस करते हैं, हम एक जगह को ट्रेस करते हैं और वो हम इजीली फाइंड कर सकें। एक ये जो हेडिंग में जो डॉक्यूमेंट्स के नाम मेंशन है, इसी डॉक्यूमेंट्स को जब एप्लीकेशन बनता है वो एक बहुत बड़ा एक फ़ाइल होता है, तो उधर हम इजी ट्रेसिंग के लिए ये जो है ना कैटेगराइजेशन करते हैं। प्रैक्टिकली हम हेडिंग के आगे एक पेज नंबर भी लिखते हैं और हम उस पेज नंबर में फिर जो भी हेडिंग है उसके आगे पेज नंबर लिखते हैं कि ये जो हेडिंग है ये इस पेज नंबर पर लाई करता है। ठीक है, फॉर इजी ट्रेसिंग। अच्छा जी, 1.3 जो है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी। अब 1.3 में जो सबसेक्शन है 1.3.1, इसमें हम क्या क्या पुट करते हैं? ये जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होते हैं ये हम सेपरेट जगहों पे रखते हैं। एक पेज पे एक, फॉर एग्जांपल हेडिंग, दूसरे पेज पे दूसरा, तीसरे पेज पे तीसरा, मतलब हम इसको मर्ज नहीं करते, सिग्रीगेट करते हैं ताकि इजीली ट्रेस हो सके। अच्छा जी, अगर कुछ ऐसे हमारे पास हेडिंग है जिसका आंसर हम नॉट एप्लीकेबल में देते हैं या सिर्फ वन टिप पॉइंट आंसर होता है, तो हम एक पेज में 2, 3, 4 मुख्तलिफ सबसेक्शन रख सकते हैं। ठीक है, तो 1.3 सबसेक्शन 1.3.1 सबसेक्शन ये हम लिखते हैं और स्ट्रेट ऑन ये आगे जो हेडिंग है ये भी उधर लिखते हैं और फिर इसके नीचे जो है ना 1 बाय 1 उसका हम आगे पुट करते हैं। 1.3.1 में हम नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ एप्लीकेंट और मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर। नेम एंड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होता है? वही जो आगे प्रोसीड करता है अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उस कंपनी का एक नाम होगा, कंप्लीट नाम जो है वो हम लिखते हैं, नेम लिखते हैं आगे डबल डॉट के आगे, फिर नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं। एड्रेस हम लिखते हैं, जो भी कंपनी होती है जो कि एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है उसका एक स्पेसिफाइड एड्रेस होता है वो हम आगे लिखते हैं। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल हम लिखते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में हम मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट डिटेल डालते हैं, जिस तरह के हम अपना मोबाइल नंबर इसमें पुट करते हैं कंपनी का जो कि एप्लीकेंट होता है। उसके अलावा ईमेल पुट हम करते हैं जो कि एप्लीकेंट का होता है। उसके अलावा हम अपना वेबसाइट भी पुट करते हैं जो कि एप्लीकेंट का होता है। उसके अलावा हम फैक्स नंबर भी पुट कर सकते हैं जो कि एप्लीकेंट का होता है। पोस्ट ऑफिस नंबर हम लिख सकते हैं जो कि एप्लीकेंट का होता है। तो सबसे जो इंडिविजुअल है आजकल के दौर में जो कि मोबाइल नंबर या ईमेल जो है ये सबसे टॉप सोर्स है कंटेक्ट का। तो ये हम लिख देते हैं 1.3.2 में। अच्छा, इधर लिखा है नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट। अच्छा, ऊपर लिखा है एप्लीकेंट, नीचे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग साइट। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ? कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं
जिसमें एक पेरेंट कंपनी होती है, फिर उसके मुख्तलिफ ब्रांचेस होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो उसी केस में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग साइट जो है वो सेपरेट आता है, उसका एड्रेस, उसका नेम और उसका कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो सेपरेट आता है, और जो पेरेंट होता है एप्लीकेंट या पेरेंट कंपनी होती है उसका अपना एक होता है। तो इस चीज़ को, इस सिनारियो को क्लियर करने के लिए हम नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट, जिस जगह पर ये प्रोडक्ट बनेगी उसका जो है नेम, उस जगह का नेम, उस कंपनी का नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल, ये हम 1.3.2 में डालते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसके ब्रांचेस नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक है कंपनी है और वो अपनी सारी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पर करती है, तो उसको हम सेम एज़ अबव कर सकते हैं, या सेम जो ऊपर हमने 1.3.1 में इंफॉर्मेशन दी थी वही इंफॉर्मेशन हम 1.3.2 में भी दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 1.3.3 इसमें है कि स्पेसिफाई वेदर द एप्लीकेंट एज मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर और सी जो है एज इन्वॉल्व इन नॉन ऑफ द अबव, दैट इज कंट्रैक्ट गिवर। हम जो एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे वो मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोसीड करेंगे, तो हम एप्लीकेशन में जब वो टेबल ऑफ कंटेंट वो प्रिंट करके या सॉफ्ट में, अब आजकल तो सॉफ्ट में हम सबमिट करते हैं, तो इसी ए नंबर को हम टिक देंगे। अगर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर है इम्पोर्टर के लिए एक प्रोडक्ट है जो कि आउट ऑफ द कंट्री बन रहा है और आप इधर उसकी जो है ना अप्रूवल लेते हैं ड्रेप से कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो इसके लिए आप इधर इम्पोर्टर पर क्लिक करोगे, और सी जो है इज इन नॉट इन्वॉल्व, ना इम्पोर्टर है ना बाहर से खुद मंगा के बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ना खुद बना रहा है, दूसरी कंपनी बना रही है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को वो क्लिक करेंगे। 1.3.4 सब सेक्शन जो है इसमें क्या होता है, वैलिड डीएमएल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये चीज़ याद रखिए, मैन्युफैक्चरर का एप्लीकेंट और ड्रग सेल लाइसेंस, या हम ड्रग सेल लाइसेंस विच एवर इज एप्लीकेबल, हम ऑप्शनली दे सकते हैं, डीएमएल दे सकते हैं या डीएसएल दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर का। इधर मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब हुआ, इधर मैन्युफैक्चरर का मतलब है जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरर नहीं। नॉर्मली सब्सटेंस जो है वो आउट ऑफ द कंट्री होता है, हम उधर से मंगा लेते हैं और इधर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। जो एप्लीकेंट है इधर आगे लिखे भी है ऑफ मैन्युफैक्चरर स्लैश एप्लीकेंट, एप्लीकेंट जो है वो तो प्रोडक्ट बनाता है इधर, तो हम प्रोडक्ट का जो डीएमएल है वो हम इधर लगा लेंगे, ठीक है जी, या डीएसएल है विच एवर इज एप्लीकेबल, मेनली हम इधर डीएमएल लगा के इसको करते हैं। अच्छा, 1.3.5 एविडेंस ऑफ अप्रूवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट इज अप्रूव्ड सेक्शन फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ओके जी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो अप्रूवल देती है स्पेसिफाइड सेक्शन का। जब हम इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं और हर प्रोडक्ट जो है वो अपनी डोजेज फॉर्म के उसमें कैटेगराइजेशन में वो अपने अलग सेक्शन में बनता है। फॉर एग्जांपल टेबलेट का सेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल सिरप का सेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इंजेक्टेबल का सेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल कैप्सूल का सेक्शन होता है, तो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और उधर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है जी। तो जो जो डिफरेंट सेक्शंस जो होते हैं, जो कि एक फिर इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन के बाद वो सेक्शन लेटर हमें इशू कर देते हैं कि हाँ आपके पास वो फैसिलिटी है कि आप इस डोजेज फॉर्म को बना सको, ठीक है जी। तो ये एक लाज़मी बात है कि जिस प्रोडक्ट को हम जिस प्रोडक्ट के लिए हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारे पास मौजूद हो, ठीक है जी। अब कैप्सूल फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, लेकिन कैप्सूल की वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए फैसिलिटी, न सिर्फ फिज़िकली बल्कि एक अप्रूव्ड फैसिलिटी हमारे पास मौजूद होनी चाहिए जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने हमने एक लेटर के तहत हमें अप्रूव की हो कि हाँ आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक लेटर होता है, उसमें हमें ये ज़रूर देखना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट बना रहा हूँ तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के लिए हमारे पास एक अप्रूव्ड सेक्शन
टेबलेट के नाम से, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के नाम से हमारे पास एक लेटर होता है, वो हमारे पास होनी चाहिए और वो हम इधर लगा देते हैं और इसको रिक्वायरमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। 1.3.6 लिस्ट ऑफ ऑलरेडी अप्रूव्ड रजिस्टर्ड ड्रग्स इन दिस सेक्शन। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के लिए एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं और ये टेबलेट सेक्शन है, तो इस टेबलेट सेक्शन के साथ साथ अब जो भी हमारे इससे प्रीवियस टैबलेट्स फॉर्म में जो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो हमने वो भी एक लिस्ट में डालने होते हैं, इधर प्रोसीड करने होते हैं। ठीक है जी, तो 1.3.6 में हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के नाम को मेंशन करेंगे। 1.3.7 आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर ऑफ अथराइज्ड पर्सन इंचार्ज प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंचार्ज क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा जी, तो ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर जो है वो हम एक कागज़ पे लिखते हैं, कागज़ पे जो है ना प्रिपेयर करते हैं, फिर वो भी इधर लगा देते हैं जो मेंशन ऑथराइज्ड पर्सन है। अच्छा जी, 1.3.8 सबसेक्शन में मैन्युफैक्चरर साइट मास्टर फाइल एंड क्रेडेंशियल। साइट मास्टर फाइल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी कंपनी की कंप्लीट पॉलिसीज़ और उसमें सेक्शंस और उसके अंदर क्या किया होता है, वो एक समराइज्ड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं साइट मास्टर फाइल। साइट मास्टर फाइल हम सिर्फ उस केस में जमा करेंगे जब हम एक इंपोर्ट करते हैं एक प्रोडक्ट और इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी, अब अगर फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द केस में पाकिस्तान में ख़ुद प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, तो उस केस में आप इसके नीचे लिखोगे नॉट एप्लीकेबल और प्रोडक्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेड, या लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हम ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है सेक्शन नंबर 1.4 दैट इज़ टाइप ऑफ एप्लीकेशन। टाइप ऑफ एप्लीकेशन ये क्या होता है? अच्छा, टाइप ऑफ एप्लीकेशन हम किस किस्म का एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं, वो उसके उसमें सिनारियो में मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, वो कौन कौन से 1.4.1 सब सेक्शन में क्या एप्लीकेशन इज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ, आया ये न्यू ड्रग प्रोडक्ट है या जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट है। न्यू ड्रग प्रोडक्ट और जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या है कि देखें, अब फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ड्रेप को, ड्रेप के अंदर उसका एंट्री होता है और उसको एक नंबर, एक कोड अलॉट होता है एक प्रोडक्ट को, जिसको हम बोलते हैं डायरी नंबर। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो हमने या एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया और अभी तक वो वन टाइम भी डायरी नंबर उसको नहीं मिला है और वो फर्स्ट टाइम उसके लिए डायरी नंबर लेकर जाता है उस नेचर के प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसमें एक केमिकल है, वो केमिकल अभी तक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में अभी अप्रूव हो रहा है तो ये हो गया न्यू ड्रग प्रोडक्ट। तो उस केस में हम न्यू ड्रग प्रोडक्ट को टिक करेंगे। जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि ऑलरेडी अलॉट ऑफ कंपनीज जो है वो बनाती हैं और मार्केट करती हैं। हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए और हेल्थ पर्पस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम भी बनाना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है ऑलरेडी वो ड्रेप का जो डेटा बैंक है उसमें उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है वन टाइम। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए जो सिनारियो है वो ये है कि लॉट ऑफ कंपनीज़ जो हैं वो बनाना शुरू करती हैं। तो इस केस में अगर ऑलरेडी ड्रेप की उस डेटा बैंक में एक प्रोडक्ट मौजूद है और हम भी बनाना चाहते हैं, तो वो है जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है जी। अच्छा, 1.4.1 में ये है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ इंटेंडेड फॉर, इसकी जो आगे है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ इंटेंडेड फॉर डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट सेल, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल। अच्छा जी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ लोकली यानी पाकिस्तान में हम ये बेच रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक इसको वो क्लिक करेंगे, और अगर हम सिर्फ आउट ऑफ द कंट्री इसको बेच रहे हैं तो इसको हम एक्सपोर्ट को क्लिक करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम फॉर्म 5 या सीटीडी बनाते हैं तो हम इस पर्पज़ के लिए बनाते हैं कि हम डोमेस्टिक भी प्रोडक्ट को सेल कर सकें और एक्सपोर्ट में भी सेल कर सकें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल दोनों को इधर ही टिक लगाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है फॉर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट प्लीज़ स्पेसिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर हम फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी
हम ड्रेपो को इंश्योर करते हैं इसी पार्ट में। फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्टेड, बल्क फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बल्क इंपोर्ट एंड लोकल रिपैकेजिंग, बल्क इंपोर्ट लोकल रिपैकेजिंग फॉर एक्सपोर्ट पर्पस ओनली। एक तो ये है कि फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एज इट इज़ जो प्रोडक्ट होता है जिसको हमने मार्केट करना होता है इस फॉर्म में, हम इधर मोस्टली जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन उधर से हम इंपोर्ट करके डायरेक्ट इधर बेचते हैं, तो वो हम फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इधर टिक कर लगाएंगे। अब एक प्रोडक्ट है जो कि फॉर एग्जांपल लोकली हम रिपैक करते हैं और लोकली हम बेचते हैं, लेकिन बल्क जो है वो फॉरेन से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हम इसको 2 नंबर वाले सेक्शन को हम क्लिक करेंगे। एक प्रोडक्ट है जो कि हमने इंपोर्ट किया अब्रॉड से और इधर रिपैकेजिंग की और फिर दोबारा रिपैक करके दोबारा हम आउट ऑफ द कंट्री जो है ना उसको बेच रहे हैं, तो इसमें हम ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, टुडे वी विल मूव फर्दर। अब तक हम पहुँचे हैं 1.4 हमने क्लियर किया हुआ था, अभी हम 1.5 टेबल ऑफ कंटेंट आज पढ़ेंगे। तो 1.5 जो है वो कंप्लीटली किसके बारे में है? 1.5 डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, डोजेज फॉर्म एंड लेबलिंग क्लेम्स। ड्रग के बारे में इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, डोजेज फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, और लेबलिंग क्लेम्स। लेबलिंग क्लेम्स के लिए अगर हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ड्रग पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 1986, जिस बंदी की ये एरिया स्ट्रांग हो तो वो लेबलिंग में उसको मुश्किलात नहीं होगी और किसी किस्म की क्वेरी या किसी किस्म का क्वेश्चन वो इजीली रिजॉल्व और सॉल्व कर सकता है। और इसके साथ है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म जो है वो मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट जो होता है वो तो फार्मूलेशन डिपार्टमेंट होता है, बट अ पर्सन इन रेगुलेटरी ही शुड आल्सो हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मूलेशंस, तो तभी उसको डोजेज फॉर्म का अच्छी तरह से पता चल जाता है। और इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग, ड्रग के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है इसमें कि कौन सा API इसमें इस्तेमाल हुआ है और रिस्पेक्टिव जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको हम डिटेल से अभी एक एक पढ़ेंगे। तो 1.5 में फिर सब पार्ट जो है 1.5.1 1.5.1 explains about the generic name with chemical name and synonyms of the applied drugs। जो अप्लाई करते हैं हम जिस प्रोडक्ट की, ज़ाहिर बात है उसमें एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा या एक से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होंगे, तो उसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उस ड्रग में, वेदर वो टेबलेट है, वेदर वो क्रीम है, वेदर वो ऑइंटमेंट है, वेदर वो कैप्सूल है, ऑल आउट ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म और देयर, तो उसके अंदर क्या क्या मेनली API यूज़ हुए हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ हुई हैं, और मेनली क्या वो चीज़ है जो कि हम बेसिकली एज अ थेरेपी दे रहे हैं उस फार्मूलेशन में, तो उसका जेनेरिक नेम होता है। ठीक है जी, उस API का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का जेनेरिक नेम होता है और केमिकल नेम भी होता है। मोस्टली केमिकल नेम जो होता है उसमें स्ट्रक्चर वाइज एक एक चीज़ को मेंशन किया होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें, फॉर एग्जांपल पेप्राजीन ग्रुप है। ये केमिस्ट जो है वो इस चीज़ को क्लासिफिकेशन फ्रॉम द IUPAC सिस्टम बेहतर जानते हैं। और जेनेरिक नेम जो है वो एज अ होल एक नेम होता है, एक वर्ल्ड वाइड एक नेम होता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें कहते हैं कि पैरासीटामोल या रिफैक्सामिन, या हम कहते हैं एसिटामिनोफेन, इस तरह का जो नाम होता है वो जेनेरिक नेम होता है। IUPAC सिस्टम जो है वो केमिकल नेम पर देते हैं, फिर वो स्ट्रक्चर वाइज एक एक जो इसके अंदर है जो मॉलिक्यूल है ड्रग का, उसके अंदर एक एक एटम या फंक्शनल ग्रुप की एक्सप्लेनेशन उसमें होती है। ठीक है जी, तो हम 1.5 के सब पार्ट में 1.5.1 और सेम यही स्टेटमेंट उधर लिखते हैं। फिर नीचे जो है ना एक सब लिखते हैं जेनेरिक नेम A, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं A पार्ट जेनेरिक नेम और दूसरा नीचे फिर लिखते हैं B केमिकल नेम, उसके आगे हम जेनेरिक नाम भी लिख देते हैं और केमिकल नाम भी लिख देते हैं। शॉर्टली सेइंग जेनेरिक नेम और केमिकल नेम ये हमें DMF से इजीली मिल सकते हैं।
ठीक है जी, सब्सटेंस पार्ट में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 1.5.2। what it deals 1.5.2 deal about the strength concentration of drug of active pharmaceutical ingredient per unit। देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो है पर यूनिट। पर यूनिट मींस जो आप इंडिविजुअल यूनिट एडमिनिस्टर करते हो एक पेशेंट को, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल एक टेबलेट है, उसका एक पैक होता है, उसमें एक पर यूनिट होता है। अब एक एक टेबलेट जो है वो उसका पर यूनिट है। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म को हम देखें तो उसमें फॉर एग्जांपल 120 ml की सिरप की बोतल है, तो वो 120 ml में जो 5-5 ml होता है, एक एक जो होता है यूनिट जो एडमिनिस्टर किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, जो फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस यूज़ होता है, तो उसको हम पर यूनिट बोलते हैं। तो आपने वही कंसंट्रेशन, वही स्ट्रेंथ अपनी जहन में याद रखनी होती है, अपनी इस 1.5.2 में लिखना है जो कि यूनिट में है। ओके जी, तो यूनिट डोजेज फॉर्म अगर हम सेमी सॉलिड्स का देखें तो उसमें हम पर ग्राम के हिसाब से देखते हैं कि अब अगर आप लेबल क्लेम को देखें तो इधर अगर हम सिर्फ और सिर्फ लेबल क्लेम लिखें तो वो हमारी इस पूरी नीड्स को जो है वो पूरा करती है। लेबल क्लेम क्या होता है? लेबल क्लेम ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक टेबलेट है, उसके पैक के ऊपर लेबल क्लेम ज़रूर लिखा होता है। ये एक पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स में एक बात है कि वो आप ज़रूर लिखोगे उधर। तो किसी भी पैकेजिंग को आप उठाएं, एक टेबलेट है, कैप्सूल है, कोई भी है, उसकी जो सेकेंडरी पैकेजिंग है, जो कार्टन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ईच टेबलेट कंटेन 250 मिलीग्राम ऑफ सेप्रोफ्लॉक्सासिन, या ईच ग्राम कंटेन सिल्वर सल्फाडाइजीन इक्वल टू 1 मिलीग्राम, या समथिंग लाइक दैट, इस तरह लिखा होता है। तो जो भी आप डोजेज फॉर्म देखेंगे उसमें यूनिट डोजेज फॉर्म का वो एग्जैक्ट लिखा होता है, ठीक है जी। और ये 1.5.2 का हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं और नीचे डायरेक्ट उसमें लिखते हैं अपना लेबल क्लेम। ऊपर नाम लिखते हैं अपने प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल हमारा एक ब्रांड है, उसका एक नाम है, फिर नीचे जो है ना लेबल क्लेम लिखते हैं, ठीक है जी। तो इससे हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है। नेक्स्ट है 1.5.3। 1.5.3 कहता है कि द प्रोपोज्ड प्रोप्राइटरी नेम, ब्रांड नेम अंडर विच द ड्रग इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड विद ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन / क्लियरेंस। इसमें बेसिकली आपको बताएं, ऊपर हमने नाम दिए हैं जेनेरिक नेम, केमिकल नेम, एक और किस्म का नाम होता है जो कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को देती है, उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी नेम या ब्रांड नेम, ठीक है जी। आप सिंपली ये करें कि 1.5.3 लिखे, आगे ये सेम स्टेटमेंट लिखें, नीचे क्या लिखें, एक टैब बनाएं, उसमें लिखें प्रोपोज्ड ब्रांड नेम, आगे जो है ना डबल डॉट और सामने आगे डायरेक्ट हम लिखें अपना ब्रांड नेम, ठीक है जी। ब्रांड नेम में आपका स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, ब्रांड नेम में आपका अपना जो बेसिक नाम होना चाहिए, और ब्रांड नेम में आपका जो है ना फॉर्मुलेशन टाइप, डोजेज टाइप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेप्रोफ्लॉक्सासिन 250 मिलीग्राम टेबलेट, ठीक है, ये एक ब्रांड नेम फॉर एग्जांपल हो गया। अब सेप्रोफ्लॉक्सासिन तो चूँकि हमारे पास जेनेरिक नेम है, तो आपकी कंपनी एक स्पेसिफिक नाम इस चीज़ को देती है, तो वो नाम लगा के आप आगे 250 मिलीग्राम टेबलेट लगाएं तो आपका ये प्रोपोज ब्रांड नेम हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसके लिए अपनी CPU होती है हर सिस्टम के अंदर कि वो एक नाम देती है एक प्रोडक्ट को, तो वो किस बेस पे देती है। मोस्टली सफिक्स को देखा जाता है कि केमिकल का सफिक्स होता है या कंपनी का सफिक्स लगाया जाता है उस प्रोडक्ट में उस नाम के साथ, या प्रीफिक्स में लगाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ SOPs होती हैं, हर सिस्टम अपने हिसाब से उसको नाम देती है और ये उनको अलाउड होता है, ठीक है जी। लेकिन आपका नाम जो है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम के साथ एग्जैक्ट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सिमिलर नेम हो तो वो ड्रेब उसको अप्रूव नहीं करती और आपके ऊपर दोबारा क्वेरी आती है कि आप अपना प्रपोज ब्रांड नेम जो है वो दोबारा चेंज करके कोई नई सजेशन दे दें नेम्स की, तो हम उसमें 1-2 नाम और दे देते हैं, फिर वो हमें उसके रिस्पांस में दूसरा नया नाम देते हैं, ठीक है जी। ताकि जो यूनिकनेस है किसी कंपनी के प्रोडक्ट की वो बरकरार रहे, ठीक है। अब 1.5.4 में है प्रपोज्ड पैक साइज एंड प्रपोज्ड यूनिट प्राइस ऑफ ड्रग
that is per tablet per capsule maximum retail price MRP per pack shall also be money mentioned। तो इसमें हम ये स्टेटमेंट सिंपली लिखते हैं और नीचे इसमें 2-3 चीज़ें हैं ना, वो हम सेपरेटली फिर नीचे लिखते हैं और उसके सामने उसका जो पॉइंटेड आंसर है वो लिखते हैं। प्रोपोज्ड पैक साइज फॉर एग्जांपल मेरा टेबलेट है मोस्टली, अब ये जो है ना ये डोज पर डिपेंडेंट होता है मेजरली। डोज फॉर एग्जांपल एक सेप्रोफ्लॉक्सासिन है तो उसके फॉर एग्जांपल 10 टेबलेट्स हैं, और वेब्रोमाइसिन है या क्लेरिथ्रोमाइसिन है तो कैप्सूल में फॉर एग्जांपल वेब्रोमाइसिन के 6 टेबलेट्स एक ब्लिस्टर में होते हैं। बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आप अगर एक मेनली आप एक पैक में उतना डोज या उतनी यूनिट फॉर्म रखते हैं कि कम से कम एक पेशेंट की वन टाइम डिजीज़ के लिए वो इजीली काफ़ी हो, एनफ हो कि उसको ट्रीट कर सके। अगर लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है फिर तो उसके लिए 2 पैक्स 3 पैक्स 4 पैक्स इसी तरह के हिसाब से होते हैं। बट अगर हम इसको समराइज फॉर्म में देखें तो समराइज फॉर्म इसका ये आता है कि कम से कम एक प्रोपोज्ड पैक जो होता है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि वो एक पेशेंट की नीड को पूरा कर सके। ठीक है जी। तो मोस्टली जो है ना टेबलेट जो है वो 10S में होते हैं, 14S में होते हैं, एसोमेप्रोजोल 14S में मेनली आते हैं, और कुछ ऐसे टेबलेट्स होते हैं कि वो कंटिन्यूटी के साथ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के जो डिजीज़ के पेशेंट्स हैं वो तो रेगुलरली वो मेडिसिन लेती हैं, और इसी तरह साइको पेशेंट जो होते हैं वो रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं तो वो डब्बी फॉर्म में भी देते हैं और उसको कार्टन फॉर्म या ब्लिस्टर फॉर्म में भी देते हैं। कोई ऐसे टेबलेट्स भी होते हैं कि जो कि 100S में होते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट है प्रोपोज्ड यूनिट प्राइस ऑफ ड्रग। प्रोपोज्ड यूनिट प्राइस है और नीचे लिखा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर पैक। तो ये दोनों हम लिखते हैं सेपरेट टैब में और आगे हम लिखते हैं एज पर SRO। जो SRO में हमें वो देते हैं MRP देते हैं, हम उसी ही को फॉलो करते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। ये MRP जो है ये भी हर पैक के ऊपर लिखना लाजमी है अगर आप ड्रग को पाकिस्तान में भेज रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान का जो ड्रग पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स है उसमें ये बात क्लियरली वाज़ेह है। अच्छा, नेक्स्ट 1.5.5 जो है वो है फार्माकोथेरेप्यूटिक ग्रुप ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ओके जी। फार्माकोथेरेप्यूटिक ग्रुप जो है वो मेनली ये अब फार्माकोलॉजी में अंदर पर क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स, फिर उसके अंदर आप जाते हैं आपको अच्छी तरह पता चल जाता है कि ये जो है ना ये जो केमिकल है या ये जो ड्रग है ये किस ग्रुप में लाई करता है, किस डिजीज़ के लिए ये यूज़ होता है। मोस्टली एंटी माइक्रोबियल है, एंटी वायरल है फॉर एग्ज़ाम्पल, या एंटी एलर्जिक्स है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक फार्माकोथेरेप्यूटिक ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, ये इसमें एक होता है WHO जो है ना उसमें फार्माकोथेरेप्यूटिक ग्रुप हर केमिकल के लिए मौजूद है, और हर केमिकल के लिए एक ATC कोड भी है उधर। ठीक है जी। तो हर केमिकल थेरेप्यूटिक ड्रग के लिए उधर एक ATC कोड भी है। आप अगर सिंपली सर्च करें अपना ड्रग लिखें गूगल में, आगे लिखें ATC कोड। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रिफैक्सामिन ATC कोड WHO, तो वो मुझे डायरेक्ट ट्रेस करेगा उस WHO की रिपोर्ट को जो कि फार्माकोथेरेप्यूटिक ग्रुप के लिए उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। तो हम उसको खोल लेते हैं, उसके अंदर जो है ना लिखा होता है कि ये किस ग्रुप में लाई करता है। तो हम ये करते हैं इधर कि वो कोड लिख देते हैं और नीचे जो है ना उसके अटैचमेंट में लगा देते हैं और ड्रग का नाम लिखते हैं, फिर नीचे लिखते हैं कि इसका वो क्या है, फार्माकोथेरेप्यूटिक क्लास क्या है या ग्रुप क्या है। फिर नीचे हम इसके ATC कोड लिखते हैं और उसके सामने वही कोड डालते हैं जो कि WHO के उस लिस्ट में है। और नीचे जो है ना हम WHO का वो फार्माकोथेरेप्यूटिक ग्रुप के लिए जो पब्लिश डॉक्यूमेंट है वो हम ATC कोड वो हम उसके साथ अटैच भी करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है जी। सॉफ्ट में उधर से स्क्रीनशॉट करके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं ऐसे जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1.5.6 फार्माकोपियल रेफरेंस / स्टेटस ऑफ अप्लाइड फार्मूलेशन। ठीक है जी। अब एक है फार्माकोपियल रेफरेंस वर्ल्ड वाइड हमारे पास अलॉट ऑफ फार्माकोपियस आर देयर
कुछ जो हैं वो हमारे ड्रग एक्ट 1976 में मेंशन है, जेड क्लास में, डेफिनेशन के जेड क्लास में उधर मेंशन है। तो एक केमिकल है जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब वो किस फार्माकोपिया में लाई करता है, ठीक है जी। मेरा जो प्रोडक्ट है, सॉरी, इसमें हम रॉ मटेरियल को नहीं देखते, इसमें हम प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट जो है मेरा वो किस फार्माकोपिया में लाई करता है, यूएसपी में लाई करता है, बीपी में लाई करता है, या किस फार्माकोपिया में लाई करता है। तो हम फार्माकोपियल रेफरेंस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसपी फार्माकोपिया, और स्टेटस ऑफ अप्लाइड फार्मूलेशन में लिखते हैं फिर आगे यूएसपी, ठीक है। ये दो डिफरेंट टैब हम बनाते हैं, तो फिर उसके हम सामने हम उसके स्टेटस लिख देते हैं। अच्छा, 1.5.7 अबाउट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक फैक्टर होता है किसी भी मेडिसिन की बायोअवेलेबिलिटी के लिए, और ये एक फैक्टर होता है किसी भी मेडिसिन की इफ़ेक्ट के लिए। तो ये एक फैक्टर है ज़रूर जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव को डील करता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेनली सेफ्टी से रिलेटेड भी इसका एक बहुत बड़ा कंसर्न है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, मेनली सेफ्टी, एफिकेसी, इसके साथ इसका बहुत बड़ा कंसर्न है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक पॉइंटेड आंसर भी होता है, फॉर एग्जांपल टेबलेट है, सिरप है या सस्पेंशन है, तो अगर वो टॉपिकल है, अगर वो ओरल है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, सस्पेंशन है, सिरप है, तो हम पॉइंटेड आंसर में डायरेक्ट इसके नीचे लिख देते हैं ओरल। अगर टॉपिकल है तो टॉपिकल लिखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इंट्रावीनस है तो हम इंट्रावीनस लिख देते हैं, अगर इंट्रामस्कुलर है इंट्रामस्कुलर लिख देते हैं। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम इस 1.5.7 में लिखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है 1.5.8 फॉर जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट। One point 5.8 for generic drug product, reference of other similar approved medicine with information pertaining to manufacturer name, brand name, strength, composition, registration number and dosage form, pack size and price। अच्छा, सबसे पहले बात है कि इधर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो कि मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, फॉर जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर द न्यू ड्रग प्रोडक्ट, एनडीपी के लिए नहीं है। ये 1.5.8 सिर्फ और सिर्फ आप फेल करेंगे, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे अगर आप एक प्रोडक्ट को जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपकी कंट्री में, किसी और मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप उसका रेफरेंस लेते हैं कि इधर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस कंट्री में, ड्रेप से अथराइज्ड हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक पैक उठाते हैं मार्केट से किसी कंपनी का जो कि ऑलरेडी इसको मार्केट आउट कर चुका होता है। तो उस पैक में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इधर जो है लिखा है सिमिलर अप्रूव्ड मेडिसिन विद इन्फॉर्मेशन परटेनिंग टू मैन्युफैक्चरर नेम भी पैकेजिंग मटेरियल पर लिखा होता है, किसी भी कार्टन पर, किसी भी सेकेंडरी पैकेजिंग पर, प्राइमरी पैकेजिंग पर, किसी भी आप मेडिसिन को देख लें। ब्रांड नेम भी एग्जैक्ट उस पर लिखा होता है। ये लाजमी इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी पैकेजिंग पर होनी चाहिए। स्ट्रेंथ भी उस पर लिखा होता है, तो स्ट्रेंथ भी हम उसके सामने लिख देते हैं। कंपोजिशन भी लिखी होती है, कंपोजिशन हम लेबल क्लेम से मेनली लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपने लिखना होता है किसी भी पैक पर, ये एक लाजमी पार्ट है और ये एक लाजमी पॉइंट है ड्रग पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 1986 का। एंड डोजेज फॉर्म तो आपको क्लियरली पता चल जाता है अगर टेबलेट है या सिरप है या सस्पेंशन है, ठीक है जी। और पैकेजिंग पर ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर ये भी लिखा होता है कि कौन सा डोजेज फॉर्म है, ठीक है जी। और एंड प्राइस भी लिखा होता है, एग्जैक्ट प्राइस का लिखना भी ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 1986। नेक्स्ट है 1.5.9 द रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ अप्लाइड ड्रग in same molecule and salt, strength, dosage form, container closure system, indication and route of administration that is in other countries।
अच्छा जी, इसमें हम एक रेफरेंस ये भी देखते हैं कि नहीं, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये सेफ़ भी है, ये इफ़ेक्टिव भी है, ये ऑलरेडी मार्केट में इस पर ट्रायल भी हुए हैं, फॉर एग्जांपल इस पर ट्रायल भी हुए हैं, और ये एक कम्युनिटी लेवल पर भी इसको लॉन्च किया हुआ है, ये थेरेप्यूटिकली गुड है। तो इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं इधर कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ होता है या नहीं। तो हम इधर इस पॉइंट में रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एज मैंडेटेड टू मेंशन, आगे जो लिखा है अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हर कंट्री की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिधर से वो एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं, मार्केट की अथराइजेशन देते हैं। तो इन दिस टाइम आज के दौर में नेट पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि किस कंट्री में ये प्रोडक्ट है या नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक लिटरेचर सर्वे होती है, उसके लिए हम एक सेशन अलग लेंगे। तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सेम उसी प्रोडक्ट को सेम साल्ट में कोई और मार्केट करता है, फॉरेन में उसी स्ट्रेंथ में करता है, डोजेज फॉर्म में करता है, कंटेनर क्लोजर सिस्टम जो उसका है आपका भी वही है। इंडिकेशन हम लिटरेचर सर्वे से देखते हैं। अच्छा जी, तो हम ये देखते हैं कि और कंट्रीज़ में भी ये मटेरियल यूज़ होता है या नहीं होता। तो ड्रेप रेफरेंस, इस पॉइंट में हम ड्रेप को ये भी इंश्योर करते हैं कि अदर कंट्रीज़ में ये चीज़ जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये प्रोडक्ट यूज़ होता है थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए। अच्छा जी, और ड्रेप ने एक लिस्ट भी जारी किया हुआ है जिसमें रेफरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के नाम है, उनके वेबसाइट भी हैं, आप सर्च कर लें तो आपको वो भी मिल सकते हैं नेट पर। अच्छा जी, 1.5.10 डोजेज फॉर्म ऑफ अप्लाइड प्रोडक्ट। डोजेज फॉर्म हम देखते हैं कि किस डोजेज फॉर्म में हम अपना प्रोडक्ट जो है ना वो बनाते हैं। सेम केमिकल के लिए फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन सस्पेंशन में भी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट में भी है, इसी तरह क्लेरेथ्रोमाइसिन जो है वो टेबलेट में भी है, क्लेरेथ्रोमाइसिन कैप्सूल्स में भी है। तो सेम केमिकल के लिए लॉट ऑफ डोजेज फॉर्म आर देयर। तो हम इधर मेंशन करते हैं कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो इस केमिकल के लिए यही डोजेज फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है जी। 1.5.11 प्रोपोज्ड लेबल आउटर सेकेंडरी इनर प्राइमरी एंड कलर स्कीम इन अकॉर्डिंग्स विद ड्रग लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल्स 1986 अलॉन्ग विद स्पेसिमेन। पहली बात तो ये है कि ये जो येलो हाईलाइट मैंने किया है इसका मतलब ये ऑप्शनल है, आप ये दे भी सकते हो, अगर ना भी दिया तो ये इस पे आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये आपको उन्होंने फ्री हैंड दिया है अभी इस टाइम पर, आने वाले टाइम में शायद इसको वो इम्प्लीमेंट कर दें कि इसका उसको मैंडेटरी करार दें, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ रिलैक्सेशन। हम इसको अगर ये ना भी दे, नॉट एप्लीकेबल मोस्टली हम इधर लिखते हैं। तो हम इसमें क्या देते हैं, अगर हमें देना होता है तो हम इसमें क्या देते हैं, पैकेजिंग जो होती है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी होती है। फिर उसके ऊपर जो है ना पैकेजिंग के ऊपर रिटन फॉर्म में हम लेबलिंग करते हैं। ठीक है जी। अब लेबलिंग किया है, लेबलिंग कंप्लीट कोई भी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है प्लस कोई भी उसके ऊपर पिक्चर्स होते हैं या कोई भी उसके ऊपर कलर स्कीम होता है, ये सारा जो है वो लेबलिंग में आता है। ठीक है जी। तो प्राइमरी के ऊपर, सेकेंडरी के ऊपर और टर्शरी के ऊपर ये आप कौन सी लेबलिंग करते हो तो वो सब हम इधर जो है ना एक लिखते हैं। और एक स्पेसिमन का जो हमारा प्रोडक्ट होता है ट्रायल के तौर पर जो हमने बनाया होता है और आगे हमारा प्लान होता है कि हम इसी पैकेजिंग में इसको मार्केट आउट करेंगे, तो वो हम उसको जो है ना स्कैन करते हैं और स्कैन करके इधर अपनी उसमें लगा भी देते हैं अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है जी। नेक्स्ट है 1.5.12 डिस्क्रिप्शन ऑफ बैच नंबरिंग सिस्टम। अगेन येलो हाईलाइटेड, इट मींस ये भी एक मैंडेटरी पॉइंट नहीं है, लेकिन स्टिल अगर उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट में दिया हुआ है तो समझना इसलिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट टाइम एक टाइम में इसको मैंडेटरी पर करार देंगे। स्टिल देयर इज़ रिलैक्सेशन, अगर ना भी दिया नॉट एप्लीकेबल भी हमने इधर लिखा तो इसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट या क्वेश्चन नहीं होगा।
अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैच नंबर, इसलिए कोई भी सिस्टम होता है वो अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बैच नंबर देता है। तो एक प्रोडक्ट की बैच नंबरिंग जो है वो एक प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक मैनर के थ्रू होती है, रैंडम नहीं होती है, कंट्रोल्ड होती है और एक तरीके कार के मुताबिक होती है। तो वो बैच नंबर सिस्टम की ESOP होती है, वो अप्रूव्ड होती है इंटरनल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, QA मेनली इसमें मेनली रोल होता है उसका। तो कि वो सब जो है ना उन्होंने इसको साइन किया होता है हेड्स ने, और आगे हम वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब वही ESOP जो है वो हम स्कैन करते हैं और इधर इसके नीचे लगा देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है 1.5.13 ट्रेनिंग एविडेंस ऑफ टेक्निकल स्टाफ विद रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अप्लाइड ड्रग मैंडेटरी इन केस ऑफ स्पेशली डिजाइन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नॉवल डोजेज। अच्छा जी, नॉवल डोजेज फॉर्म्स। देखिए सबसे पहले बात यह है कि ये इधर एक कंडीशन लगी है। कंडीशन क्या लगी है कि नावल डोजेज फार्म में आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? ट्रेनिंग एविडेंस। आप नावल डोजेज फार्म अगर बनाओगे तो जो भी आपके टेक्निकल स्टाफ है उसकी 100% ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए कि हाँ ये ट्रेंड है, अब तभी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है जी, वो हम इसके नीचे लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, आज हम 1.5.15 से आगे जाएंगे और अब तक हमने जो पढ़ा है वो रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। नाउ 1.5.15 से लेकर 1.5.20 के जो सेक्शंस हैं, CTD के जो पार्ट्स हैं, वो बेसिकली रिलेटेड टू द कमिटमेंट्स। A person being an applicant commits about some matters and some deals with the Drug Regulatory Authority of Pakistan। फिर हम जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे, और अगर किसी सूरत में हम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो ड्रेब को ये अथराइज़ है कि वो किसी भी टाइम हमारा जो डोजियर है, CTD एप्लीकेशन है, उसको रिजेक्ट कर दे। वेदर ड्यूरिंग इवोल्यूशन, हमें लेटर देने से पहले भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, और लेटर देने के बाद भी ये जो कमिटमेंट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। और कौन कौन से कमिटमेंट है, किस रिलेटेड हम कमिटमेंट देते हैं ड्रेब को? अच्छा, हम कमिटमेंट देते हैं मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव की। नंबर 1, हम कमिटमेंट देते हैं फार्माकोविजिलेंस की, कि हम अपने प्रोडक्ट की फार्माकोविजिलेंस करेंगे। तो इससे एक बात तो ये ज़ाहिर होती है कि फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट या फार्माकोविजिलेंस के एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होना ज़रूरी है। दूसरा कमिटमेंट हम करते हैं रिकॉल ऑफ द पेज इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट्स और एनी नोटिफिकेशन जो हमें ड्रेब की तरफ से आती है तो हम अपने पेज को रिकॉल करते हैं। इसके मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ सिनारियोज़ हैं, उसमें हम अपना पेज रिकॉल करते हैं। हम ये भी कमिटमेंट करते हैं एक जगह पे कि हम किसी भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ड्रेब को ये अथराइज़ है कि वो हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दें। इसके अलावा हम कमिटमेंट फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन की भी करते हैं कि हम फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन जो लेटेस्ट है वही स्पेसिफिकेशन हम अपनाएंगे। और इसके अलावा स्टेबिलिटी स्टडीज़ की भी हम कमिटमेंट करते हैं कि हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो हैं वो परफॉर्म करेंगे और सेम प्रोटोकॉल के तहत हम अपना स्टेबिलिटी स्टडी प्रोसीड करेंगे टिल द कंप्लीशन ऑफ स्टेबिलिटी। और उसके अलावा हम ये भी उसको में कमिटमेंट करते हैं कि हम 3 बैचेस जो हैं उस पे स्टेबिलिटी कंप्लीट करेंगे, और हर साल जो है एक एक बैच जो है वो स्टेबिलिटी चैम्बर में रख के उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो प्रॉपरली स्टार्टिंग 1.5.15 commitment / undertaking that after registration of applied drug the pharmacovigilance department of applicant noted this point, the pharmacovigilance department of applicant / manufacturer is liable to impose similar restriction addition of clinical information, that is like an indication, contraindication, side effects, precaution, dosage form and adverse drug reaction, etc. in
समरी ऑफ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, लेबलिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल। हम ये कमिटमेंट देते हैं कि हमारा जो एप्लीकेंट का फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होगा वो सेम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेगा जिस इंफॉर्मेशन के तहत हमने एप्लीकेशन प्रोसीड की है। जो चीज़ एप्लीकेशन में है वही चीज़ जो है हमारे प्रैक्टिकल में रियल प्रोसेसिंग में भी होगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा हम क्या करेंगे कि हम एडिशन, इसके बाद जब हम मार्केट आउट करेंगे एक प्रोडक्ट तो उसके बाद हम उसकी क्लिनिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं, जो प्रोडक्ट जिसका हमें फॉर एग्जांपल मिल जाए तो उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। और मॉनिटर करने के बाद जो हम प्रमोशनल मटेरियल है, फॉर एग्जांपल लेबलिंग हो गया या कोई इस तरह का और प्रमोशनल मटेरियल हो गया जो कि डॉक्टर्स को हम देते हैं, उसमें वो चीज़ भी हम शामिल करेंगे। ये हम कमिटमेंट देते हैं ड्रेब को। ओके, और अगर नहीं करेंगे, विथड्रा द ड्रग फ्रॉम मार्केट इन पाकिस्तान विद इन 14 days after knowing that such information that is which was not available or approved by the DREP at the time of registration / action taken for the safety reason by any reference stringent drug regulatory agency authority and also inform the DREP drug regulatory authority of Pakistan। ओके जी, तो अगर फॉर एग्जांपल हम अपने कमिटमेंट की पासदारी नहीं करते तो ड्रेब की तरफ से हमें कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिले या नोटिफिकेशन मिले कि जो या सेफ्टी से रिलेटेड उन्होंने एक्शन लिया हो या किसी ऐसे इंफॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया हो ड्रेब ने कि जिसमें जो हमने एप्लीकेशन में प्रोसीड किया था वही चीज़ हम आगे प्रैक्टिस में नहीं कर रहे, मार्केट में उससे डिविएशन में है कुछ इन्फॉर्मेशन या लेबलिंग पर या किसी और इस तरह की पर्सपेक्टिव में, या वो स्पेसिफिकेशन डिटेल में चेक करते हैं और वो स्पेसिफिकेशन हमारे नहीं ओबे होते, तो ड्रेब के पास ये अथॉरिटी है कि वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे और कोई भी एक्शन ले ले। और इसके अलावा अगर हमें कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है ड्रेब की तरफ से कि आप अपना प्रोडक्ट वापस ले आएँ, तो हम विद इन 14 days जो भी एक्शन ड्रेब हमें बताएगी, अगर हम फार्माकोविजिलेंस की वो नहीं करेंगे, ओबीडियंस नहीं करेंगे, और तो ड्रेब की तरफ से जो भी एक्शन हमें मिलेगा कि आप अपना मार्केट से ड्रग बेच जो है विड्रा करो विद इन 14 days। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम 14 दिन के अंदर अंदर यानी 2 हफ्तों के अंदर अंदर जिस नोटिफिकेशन पे के ऊपर अपना एक डेट लिखा होता है कि उस डेट से 14 days ऑनवर्ड, ये हमारे पास एक टाइम होता है, लिमिट होता है कि उस टाइम के अंदर अंदर कोई भी हमारा एक भी पैक जो है वो मार्केट में फिर ना मिले जब ड्रेब की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये कमिटमेंट सेम एज इट इज़ हम एक वाइट पेज पर वो करते हैं, पेस्ट करते हैं, यही इंफॉर्मेशन सेम इट इज़ इट उधर हम पेस्ट करते हैं और नीचे जो है अथराइज्ड पर्सन का साइन होता है और 1 पेज पे ये सारे एक एक कमिटमेंट हम लिखते हैं। 1.5.16 में हम ये कमिटमेंट देते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, रिगार्डिंग द रिकॉल ऑफ द डिफेक्टिव फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। याद रखें, डिफेक्टिव फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, सही वाला जो नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि डिफेक्टिव है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी पड़ा है और उसमें डिफेक्ट पाया जाता है, तो हम किस चीज़ को ओबीडियंस करेंगे, किस चीज़ को ओबे करेंगे, ये हम एक कमिटमेंट देते हैं। हम क्या करेंगे फिर, एंड नोटिफाई द कंप्लायंस ऑफ द अथॉरिटी अलॉन्ग विद द डील ऑफ एक्शन टेकन बाय हिम as soon as possible but not more than 10 days. The level of the recall shall also be defined. एक फार्माकोविजिलेंस का है कि हमें ड्रेब की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हम उसकी ओबीडियंस करेंगे। एक जो है रिकॉल, जब स्पेसिफिकली डायरेक्ट उनका रिकॉल का लेटर आ जाए कि आपने बेच रिकॉल करना है, तो स्पेसिफिकली रिकॉल के लिए जो मेरे पास टाइम है वो कितना है, 10 days। 10 days के अंदर अंदर मैं अपना बेच वापस करूँगा। ऊपर फार्माकोविजिलेंस है, फार्माकोविजिलेंस मीन्स अगर ड्रग ने कहा कि ये सेफ ड्रग नहीं है, इसको मार्केट से रिमूव किया जाए, तो ये ऊपर वाले फार्माकोविजिलेंस के ज़ुमरे में आएगा। या इसमें एडीआर ड्रग है, फॉर एग्जांपल एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो वो एक एडीआर है उस प्रोडक्ट में मौजूद है लेकिन हमने मेंशन नहीं किया हुआ है और वो सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो फिर ड्रेब की तरफ से अगर हमें नोटिफिकेशन मिलेगा तो वो फार्माकोविजिलेंस के अपने रूल्स हैं, फार्माकोविजिलेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये एक बंदा जिसकी फार्माकोविजिलेंस वो एरिया स्ट्रांग हो तो वो उसको समझ सकता है
कि अब फार्माकोविजिलेंस में मेरा केस लाई करता है या नहीं करता। तो और दूसरी जो नीचे केस है 1.5.16 ये रिकॉल का है। रिकॉल स्पेसिफिकली हम करते हैं विद इन 10 डेज और रिकॉल के लेटर के ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि रिकॉल ऑफ द बैच, और ये जो है ड्रेप के साइट पर भी रिकॉल का एक नोटिफिकेशन होता है और वो मैन्युफैक्चरर को भी ये रिकॉल का नोटिफिकेशन शेयर कर देते हैं। आगे जो है हमारे पास है कमिटमेंट रिलेटेड टू द फॉल्स क्लेम। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट बनाया और उसके ऊपर एक लेबल क्लेम लिखा या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी जो कि उस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एक कमिटमेंट देते हैं ड्रेप को कि हम क्या करेंगे, दैट इन केस ऑफ एनी फॉल्स क्लेम कंसीलिंग इंफॉर्मेशन द ड्रेप हैज़ द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन एट एनी टाइम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट एनी टाइम ड्रेप के पास ये अथॉरिटी पर होगी और हम ये एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ पहले कमिटमेंट करते हैं बिफोर द प्रोडक्ट अप्रूवल कि ठीक है जी, अगर हमारे प्रोडक्ट की कोई भी क्लेम फॉल्स हो या कोई इन्फॉर्मेशन हमने कंसील की जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है उस प्रोडक्ट में, तो हम क्या, तो ड्रेप के पास अथॉरिटी है कि वो मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट करे। आगे क्या लिखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर एंड आफ्टर अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। बिफोर भी कर सकता है, ड्रेप के पास अथॉरिटी है, आफ्टर भी कर सकता है। तो इसमें हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। 1.5.18 में हम एक कमिटमेंट देते हैं रिलेटेड टू ओबीडियंस और कंप्लायंस ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन। हम सबको पता है कि स्पेसिफिकेशन मोस्टली पाकिस्तान में यूएसपी या बीपी ही चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी केमिकल या जो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल फार्माकोपियल कवर्ड नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी जो स्पेसिफिकेशन है वो डेवलप करेंगे और वही स्पेसिफिकेशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। कमिटमेंट अंडरटेकिंग दैट द फर्म शेल फॉलो द ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट सब्सटेंस एज पब्लिश इन द लेटेस्ट एडिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटेस्ट एडिशन का स्पेसिफिकेशन आपने देखना है और उसी को ही आपने फॉलो करना है। And shall update its specification as per latest edition of the same. In case the specification of the product substance not present in any official pharmacopoeia, the firm shall establish the specification. In both cases, the validation of specification shall be done by the applicant. वैलिडेशन जो है वो हमने हर हाल में करना है, चाहे वो यूएसपी स्पेसिफिकेशन हो, चाहे वो बीपी स्पेसिफिकेशन हो, चाहे वो यूरोपियन फार्माकोपिया स्पेसिफिकेशन हो। वैलिडेशन हमारे पास हाँ सारी की स्पेसिफिकेशन की हमने वैलिडेशन करनी है। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकली एक फार्माकोपिया में कवर्ड है तो फिर हम ये इजाज़त नहीं है, चूँकि हमने इधर कमिटमेंट किया है कि हम जो है ना ओबे करेंगे लेटेस्ट एडिशन के स्पेसिफिकेशन को। सही है। तो एज़ पर स्पेसिफिकेशन, एज़ पर लेटेस्ट एडिशन हम अपनी स्पेसिफिकेशन जो है वो अपडेट भी करेंगे टाइम टू टाइम। ओके। 1.5.19 में हम एक कमिटमेंट करते हैं पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। देखिए, हमने एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अप्लाई किया और उस प्रोडक्ट की हमने फॉर एग्जांपल यूएसपी स्पेसिफिकेशन अप्लाई की है 2024। अब ये केस आया कि 2024 में एक टेस्ट था जो कि यूएसपी में था, जिस टाइम हमने एप्लीकेशन की, प्रोसीड की, हमें रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल लेट से मिल गई। तो अब 2025 में एक वो टेस्ट जो 2024 में था वो रिमूव हो गया या एक और एक्स्ट्रा टेस्ट जो है वो यूएसपी में ऐड हो गया उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट की लेटेस्ट एडिशन की स्पेसिफिकेशन अप्लाई करेंगे। अब इस केस में हम वो टेस्ट जो 2025 में आया वही हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम अब ड्रेप को जो है ना पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन जो है ना वो एक प्रोसेस के तहत हम उधर से फिर दोबारा अप्रूवल भी लेंगे। ठीक है जी। तो पोस्ट अप्रूवल, अच्छा एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि फॉर एग्जांपल 2000 अब जो लेटेस्ट है 2025 की स्पेसिफिकेशन मैंने अभी अप्लाई की और कुछ मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, चूँकि प्रोडक्ट की 2-3 सर्टिबिलिटी होती है जो कि 2024 में मैंने बनाया था और वो अभी भी जो है ना मार्केट में मौजूद है। तो इस टाइम 2 अप्रूवल मेरे साथ सेम टाइम पर चल रही है मार्केट में। फॉर एग्जांपल लेट्स से
एक 2024 की जो स्पेसिफिकेशन है उसकी अप्रूवल, और 2025 में मैंने स्पेसिफिकेशन की अप्रूवल ली जिसमें एक एडिशनल टेस्ट था और वो भी। तो 2 अप्रूवल सेम टाइम पर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की नहीं होनी चाहिए, इसकी हम कमिटमेंट देते हैं इधर। देखें आगे, द एप्लीकेंट शेल इंश्योर द प्रोडक्ट विद द बोथ अप्रूवल्स शेल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट एट द सेम टाइम। कभी भी आप 2 अप्रूवल नहीं ले सकते किसी चीज़ के बारे में भी। तो सेम केस इधर भी स्पेसिफिकेशन आपकी 2 स्पेसिफिकेशन नहीं चल सकती या 2 अप्रूवल नहीं चल सकती। एंड द प्रोडक्ट विद न्यू अप्रूवल शेल बी मार्केटेड ओनली आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द प्रीवियस अप्रूवल। अगर आप नए अप्लाई करना है तो आपने पहले इंश्योर करना होगा कि जो प्रीवियस है वो अभी मार्केट में बिल्कुल क्लियर हो गया है या नहीं क्लियर हुआ है। The company shall be liable to inform the same regarding marketing status of the product to the DREP after getting such post registration approval. पोस्ट रजिस्ट्रेशन अप्रूवल आपने कर ली तो आपने खामखा जो है ना DREP को इंटीमेशन देनी है, और उधर से दोबारा उनका जब रिस्पांस आ जाए आपको अलाउ कर ले वो, तो आप पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन कर सकते हैं। देखिए अदर कमिटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेबिलिटी स्टडीज़ के हम कमिटमेंट एप्लीकेशन दौरान में ही दे दें, चूँकि हम अपना एप्लीकेशन तब प्रोसीड करते हैं जब हमारा 6 मंथ की स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाए। अब 6 मंथ की स्टेबिलिटी कंप्लीट होने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम 2 साल की स्टेबिलिटी पैक के ऊपर लेके आएँ और हमारी स्टेबिलिटी एप्लीकेशन के दौरान 6 माह की हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं,